Today we will learn about tissues. What are tissue? So it is a group of cells similar in structure and function is called tissue. These tissues might be like of various complexity depending upon their function and origin. Basically when the cells are formed they are undifferentiated. After the cell differentiation, what do we mean by differentiation? When a cell is made, it has no particular function, but based upon their location, the point from where they originated, that is called their origination. Based on this origin, the cells they adapt for particular functions. For example, if the tissues in the eyes, they will be adapted for vision. The tissues in the stomach will be adapted for digestion. So once this function has been adapted, they perform the same function throughout their life. Okay, and this is known as cell differentiation. And once the cell differentiation has taken place, they perform that particular function. Why do multicellular organisms have tissue? So this is based on the law of division of labor. Division of labor मतलब हम क्या करेंगे, बॉडी में होने वाले सारे फंक्शंस को will divide among the various cells in the body, and this particular group of cells performing only particular function will be called as tissue. Based on this, we have two types of tissue. Tissues can be basically classified as the animal tissue and the plant tissue. So we have got animal tissue and then we have plant tissue. Okay, now in plant tissue, if we say plant tissues, फिर से दो तरह के होते हैं. एक होता है permanent और एक होते हैं meristematic. Meristematic are also known as meristems. अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में. हाउ इज द प्लांट टिश्यू बेसिकली क्लासिफाइड इनटू. ओके, सो प्लांट टिश्यूज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज जो होते हैं फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट मेरिस्टेम्स which are also known as meristematic tissue. So meristems can again be of three types. Based upon the location on which they are formed. हम जानते हैं प्लांट का दो पार्ट होता है. एक होता है above the ground which is called shoot and one is below the ground which is called root. So shoot का एक apex, apex means the top part. root का भी एक apex मतलब जो एकदम bottom का lower most part. So top और bottom का apex, apex मतलब tip, वहां जो प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम्स. नाउ एपिकल मेरिस्टेम्स, ओके, मेरिस्टेम्स किसे कहते हैं पहले वो तो देख लें. मेरिस्टेम्स वो सेल्स होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. दे कैन शो सेल डिवीजन, जबकि परमानेंट जो होंगे दे कैन नॉट शो सेल डिवीजन. सो नो सेल डिवीजन. So, यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं है, therefore they are called permanent tissue. जबकि मेरिस्टेम्स में सेल डिवीजन पॉसिबल है. जो एपेक्स पे प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम, at the apex or the tip of the shoot and the tip of the root. Then comes lateral meristems. Now, what are lateral meristems? So, looking into the lateral meristems, they are present at the nodes of the shoot as well as somewhere in the roots as well. So, जो nodes होते हैं यहाँ पर, उधर जो present होते हैं वो होते हैं lateral meristem. और एक होता है intercalary meristems. Intercalary are present in the region in between the nodes. Okay. So now we will learn in detail about apical, lateral and intercalary meristems. Now characteristics पहले हम देख लेते हैं meristems के before moving ahead. So characteristics of meristematic cells कैसे होंगे ये? So they are all living cells, ठीक है. और सबसे important, they are capable of
सेल डिवीजन मतलब एक सेल डिवाइड होके एक से दो सेल में कन्वर्ट हो सकता है। दे आर थिन वॉल्ड मतलब उनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही थिन होता है। कॉम्पैक्ट मतलब एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं। लैक इंटरसेलुलर स्पेस दैट मींस दो सेल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होगी। ऐसे ये एक सेल है तो ये दूसरा सेल है, आप देख सकते हो। तो इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज वेरी लेस, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है ये। नाउ प्रोमिनेंट और कॉन्स्पियस न्यूक्लियस जो इजीली विजिबल हो माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे वैसा न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट है। देन वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट, वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। एंड एज लास्ट वन दे आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। नाउ we'll look into the classification of meristems, apical, lateral and intercalary. We will just put 2 points to explain those. So apical meristems, they are present at the root and shoot apex, that is also known as the tip. Okay, they help in increasing the length. Then come to the lateral meristem. Lateral meristems are also known as cambium. Okay, they are parallel to the length of the root and the shoot. They help in increasing the girth और द विड्थ यानी उसको चौड़ा होने में और मोटा होने में हेल्प करेगा स्टेम और रूट्स को। नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स दे आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स at the base of the internodes and they help in increasing the length. How? I'll show you with a basic diagram over here. So हम एक डायग्राम इधर बना लेते हैं of a stem. So let me say this is a stem, these are nodes. ये nodes वो जगह होती है जहाँ से एक लीफ अराइज होता है, आपने देखा होगा स्टेम में। सो जहाँ से लीफ अराइज होगा उस पे बेस जो होता है उसे हम कहते हैं नोड्स। सो नाउ इधर जो प्रेजेंट है एट दिस पार्ट दे आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम्स। नाउ यहाँ पे जो प्रेजेंट है ऐसे इस तरह से अलोंग द लेंथ लैटरली जो प्रेजेंट है दे आर नोन एज लेटरल मेरिस्टेम्स और कैम्बियम। एंड देन दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ दिस नोड्स, ये नोड्स के बेस पे प्रेजेंट होंगे इधर, दे आर नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो दिस इज हाउ ये लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ये भी यहाँ से बड़ा होगा तो इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ेगा और ये जब बड़ा होगा तो ये इसका गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। नाउ विल लुक इनटू permanent tissues. Now permanent tissue, as we know, they have no capacity to divide further, so no cell division. ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा, can call it as 0th point. Cell division तो इनमें पॉसिबल है ही नहीं। थिक और थिन वॉल्ड हो सकते हैं, जो इनका सेल वॉल होता है वो मोटा भी हो सकता है पतला भी हो सकता है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप इस चीज को देखोगे जो मैं अभी समझा रहा हूँ। पहले हमने देखा था मेरिस्टेम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है। मेरिस्टेम जब डिवाइड हो जाता है और सेल डिफरेंशिएट होकर अपना परमानेंट फंक्शन चूज कर लेता है तब वो बन जाता है पैरेन्काइमा। ठीक है, सो पैरेन्काइमा के काफी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक जैसे होंगे। अब पैरेन्काइमा जो है आगे जाकर वो कॉलेनकाइमा बन जाता है, तो उसमें बहुत सारा थिकनिंग ऐड हो जाता है उसके सेल वॉल्स में, जो गैप है बीच में दो सेल्स के बीच में उधर थिकनिंग ऐड हो जाएगा तो वो कॉलेनकाइमा बन जाएगा। और कॉलेनकाइमा में से स्क्लेरेनकाइमा बन जाएगा जब थिकनिंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि सेल बेचारा जिंदा ही नहीं रह सकता है, उसकी नौबत आ जाएगी कि सेल बेचारा मर जाएगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बिकम स्क्लेरेनकाइमा। तो इस तरह से, तो जब हम पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो उसमें थिन वॉल होगा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे तो उसमें थिक वॉल होगा। डिफरेंशिएटेड सेल्स तो ये तीनों तीन डिफरेंशिएटेड है, अपना फंक्शन वो लोग डिसाइड कर चुके हैं क्या करेंगे। पजेस इंटरसेल्यूलर स्पेस, हाँ इनमें थोड़ा बहुत इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, जैसे मेरिस्टेम में बिल्कुल ना के बराबर था, पैरेन्काइमा में होगा मगर कम होगा। कॉलेनकाइमा में पैरेन्काइमा से ज्यादा होगा और स्क्लेरेनकाइमा में तो बहुत ज्यादा होगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी। अब पेरिफेरी का क्या मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं ये है एक प्लांट सेल, इसमें ये सेल वॉल लगा हुआ है, तो न्यूक्लियस बीच में सेंटर में नहीं होगा, प्रोमिनेंट दिखने वाला भी नहीं होगा। न्यूक्लियस बेचारा साइड में किनारे पे खसक गया पेरिफेरी की तरफ, और बीच वाली जो जगह है वो कौन ले लेगा, वैक्यूल। सो न्यूक्लियस जो है वो आपका साइड में पेरिफेरी में, और वैक्यूल जो है वो सेंट्रल पोजीशन में आ जाएगा जब मेरिस्टेम से ये डिवाइड होकर परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे तब। नाउ लिविंग और डेड, जैसे मैंने बताया ये दो ज्यादातर लिविंग होते हैं और स्क्लेरेनकाइमास दे आर मोस्टली नॉन लिविंग। नाउ टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू,
परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। जैसे नाम बता रहा है, सिंपल मतलब एक ही तरह के सेल्स का बना हुआ है तो सिंपल है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा तरह के सेल्स से अगर बना हुआ है तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम है जो हम आगे देखेंगे। पहले हम बात करते हैं सिंपल, जिसमें है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सो पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें, सो पैरेन्काइमा वो टिश्यू होता है जो सबसे पहली बार सेल डिफरेंशिएशन से बना है, मतलब इसके थिन होंगे सेल वॉल और बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम होगा। न्यूक्लियस अभी भी इनमें जो है वो सेंट्रल पोजीशन में हो सकता है, ठीक है, बट इसमें अब वैक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लार्ज वैक्यूल्स विल बी फाउंड। पैरेन्काइमा जनरली जो है वो पिच सेल या ग्राउंड सेल फॉर्म करता है, ठीक है, मास जो बल्क मास ऐड करेगा वो पैरेन्काइमा होगा। पैरेन्काइमा के दो स्पेशल टाइप होते हैं, अगर उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है so we will call it as chlorenchyma, और अगर उसमें एयर बबल्स हैं, एयर बबल्स, we'll call it as एरेन्काइमा। एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होगा जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करेगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा। नाउ कमिंग टू द कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा पैरेन्काइमा से ज्यादा थिक सेल वॉल होगा, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा, वैक्यूल्स ज्यादा बड़े होंगे, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और थिकनिंग इसमें पैक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिग्निन इसमें कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। देन कमिंग टू द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, थिकनिंग इतनी हो जाएगी कि सेल्स ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में दो तरह के होते हैं हमारे पास में, एक होता है फाइबर्स और दूसरे होते हैं स्टोन्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फाइबर्स, तो फाइबर्स वो होते हैं जो एलोंगेटेड स्क्लेरेन्काइमा है और स्टोन्स वो होते हैं जो राउंड और ओवल स्क्लेरेन्काइमा है जिनमें इतना थिकनिंग भर गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बात करें कोकोनट की, ड्राइड अप कोकोनट, तो ऊपर से जो हम रेशे फाइबर निकालते हैं वो है फाइबर्स में, और अंदर जो टफ शेल निकलता है कोकोनट के पहले वो है स्टोन स्क्लेरेन्काइमा। जो हम वुड लकड़ी हम काट कर लाते हैं उसमें ज्यादातर लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी में स्क्लेरेन्काइमा सेल होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ complex tissues, xylem and phloem. Xylem basically meant for the transport of water and phloem which is meant for translocation of food. So water जो roots absorb करेगा उसको ऊपर leaves तक पहुंचाने का काम बीच में से xylem करेगा जो roots ने absorb किया है, और leaves जो food prepare करेगा उस food को हमको roots तक भी तो भेजना पड़ेगा, वो काम करेगा हमारा phloem। इनको complex इसलिए बोले हैं क्योंकि इनमें एक से ज्यादा तरह के cells present हैं। So various components of xylems are tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. Xylem sclerenchyma are also known as fibers. sclerenchyma के मार्क्स आप देख सकते हो, जब आप लकड़ी वुड खरीदते हो तो उसके ऊपर गोल गोल ऐसे रिंग्स बने होते हैं। These rings are basically due to this sclerenchyma cell, xylem और phloem की प्रेजेंस दिखाती है आपको। Anyhow, tracheids, tracheids जो होते हैं वो इस तरह के शेप के होंगे, नैरो स्पिंडल शेप, और ऐसे सेल्स होंगे। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स आपके ट्यूब लाइक होंगे, इस तरह के सेल्स होंगे। एंड देन कम्स पैरेन्काइमा जो बल्कि मास फिल करेगा आजू बाजू। देन कमिंग टू द फ्लोएम, फ्लोएम हैव गॉट सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स मतलब ऐसे ट्यूब्स होते हैं और उनके बीच में सीव प्लेट्स होते हैं। सीव मतलब वो छलनी, जैसे चाय बना के हम छान दे ना, वैसे छलनी जैसे इसमें बीच बीच में लगे होते हैं। सो दिस आर सीव प्लेट्स। सो ये पूरा जो है ये सीव ट्यूब है। अब सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये नॉन लिविंग बन जाएगा, पर नॉन लिविंग है तो बेचारे का काम कैसे चलेगा, तो इसका एक दोस्त इसके साथ हमेशा एसोसिएटेड रहता है जिसे हम कहते हैं कंपेनियन सेल, जिसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और वही इस सीव ट्यूब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सो दैट इज कंपेनियन सेल। अगेन पैरेन्काइमा जो अभी अभी फॉर्म हुआ है, बल्कियर मास है जो आगे जाके इनमें कन्वर्ट हो जाएगा सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल में, वो है अभी पैरेन्काइमेटस, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो अब डेड हो चुका है बनने के बाद में, उसको हम फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं। मैंने बताया कैसे उनके मार्क्स हमें वुड्स में मिलेंगे। Now protective tissue, these are also a type of plant tissues that we will learn extra एक और। Okay, now protective tissues are those tissues which are present in the plant for the purpose of protection, protection of leaves,
स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस, एवरीथिंग। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक स्टेम है, ये इसका नोड है, इस नोड से एक स्टार्ट है, उस पे एक लीफ अराइव हुआ है। सो इस लीफ के आजू बाजू एक पूरा प्रोटेक्टिव कवरिंग है, स्टेम के बाहर की तरफ एक पूरा प्रोटेक्टिव कवरिंग है। वैसे ही यहाँ पे रूट्स हैं, सो रूट्स के आजू बाजू भी पूरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना हुआ है। सो ये कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करता है इन टिश्यूज को। दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस और एपिडर्मल टिश्यू। एपी मींस बाहर वाला, डर्मिस या डर्मल मतलब स्किन की तरह। तो जैसे हमारा स्किन होता है प्लांट्स के अंदर में एपिडर्मिस होता है। अब रूट में हम जाएंगे तो रूट्स के अंदर आपको पतले पतले रूट हेयर्स दिखेंगे। अगर आप अच्छे से देखोगे रूट को तो उसमें आपको नजर आएगा रूट हेयर। ये रूट हेयर जो होता है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस व्हिच इज आल्सो नोन एज एपिब्लेमा। ओके, so this is all about protective tissue. The main function of the protective tissue is to protect the structure of the plants like leaves, stems and roots. Okay, now in the leaves, अगर आप लीफ को अच्छे से देखोगे तो लीफ में दो सरफेस होता है। एक ऊपर वाला सरफेस होता है जो सन की तरफ फेस करता है, और एक अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हमको पीछे भी एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो सन को फेस नहीं करता है बेसिकली। सो इस पार्ट को अगर आप देखोगे तो दिस इज मोर ऑफ लाइक शाइनिंग, ये चमकता रहता है। ऐसा क्यों है, ये इतना शाइनिंग क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है। दिस वैक्स इज कॉल्ड क्यूटिन and the layer of the wax is called cuticle or cuticle, which protects the leaves from the direct sunlight and even it protects excess of transpiration from the leaves. और जो इसका posterior surface है पीछे वाला, यहाँ पे छोटे छोटे holes होते हैं which has got stomata. Stomata will help in transpiration और इधर wax कम होता है। वैसे ही जब प्लांट्स और बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें अगर आप स्टेम देखोगे तो स्टेम अब आपका बन गया है बार्क, और इस बार्क पे आप देखोगे तो ऐसे लकड़ियां निकली हुई रहती है, राइट। सो दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कॉर्क। कॉर्क के अंदर में डेड सेल्स हैं, डेड फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, और इसमें एक वाटरप्रूफ मटेरियल होता है इन कॉर्क सेल में विच इज नोन एज सुबेरिन। सुबेरिन के कारण इन होल्स के थ्रू भी पानी स्टेम के अंदर या जो ट्री का ट्रंक है उसके अंदर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द वाटरप्रूफ मटेरियल नोन एज सुबेरिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्टिव टिश्यू।